Assalamu alaikum, guys. Welcome back to another vlog. Today we have a lunch date with some Pakistani people. They were kind enough to invite us. आइए 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 अस्सलाम वालेकुम अली भाई क्या हाल है जब भी पाओ बॉयज व्हाट्सअप हाउ आर यू ऑल एक मिनट सबसे मिलते हैं दीज आर ऑल द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान इन साइप्रस अस्सलाम वालेकुम सिंह है यार अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई क्या है हे ब्रो व्हाट्सअप मुफ्ती साहब क्या हाल है मफूक भाई क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम द शाजेब आर होस्ट वन ऑफ द होस्ट्स making sushi. He's one of the best chef we have. He likes to try these new recipes. Assalamu alaikum. Second host, Mr. Hassan, and my thin friend. क्या बात है भैया जी क्या बात है So, the recipe of sushi from the host is busy preparing the base that includes some boiled rice. Okay, we don't have all the utensils, but we are using whatever we have, improvising. But yeah, the sushi looks yummy. Oh, mashallah, mashallah. Mashallah, mashallah. After the base comes in the sauce and then some main ingredients. I don't know what this is, but yeah, we had some prawns and we had some egg, some cabbage. I don't know what. Maybe some kind of fish or seafood. I don't know. I forgot. He told me, but I forgot. और सुनाई शाजेब भाई क्या हाल है Mafuk is looking very seriously. I don't know what he wants to open. Maybe a sushi bar. Yeah, we have some jinga. Jinga. That will go in, of course. I'm going to be trying this for the first time, to be honest. Nobody has ever made sushi for me. I already tried it a lot of times from outside, but making them in the house, quite an effort, and I really appreciate him. It's a dedicated job. But he is mostly used to doing all these crazy recipe thingies. He likes food, preparing food for himself, actually, and for others as well. Other menu includes mutton kunna, cooked by Mufti Saab. Mufti Saab is going to be preparing us some kunna. We have some water ready for biryani. Biryani is basically spicy chicken with boiled rice, and we add some spices and color, of course. Sometimes we add potato, sometimes we don't. This one doesn't have one. Oh my god, he's trying to tell me the recipe and tell us that these tomatoes are not any specific or normal tomatoes. They are the homegrown organic tomato paste. And we were making fun of him. But yeah, initially I was the one teaching them the recipe, but now they are trying to explain to me how it's cooked, so that made it more funnier, to be honest. Tada! Food is ready, food is ready, food is ready. Kya baat, kya baat, kya baat. Mashallah, mashallah. We have some sushi with black sesame seed. We have some biryani with chicken. We have some mutton, lamb. Mutton, basically lamb. Yeah. And we have cheesecake, homemade cheesecake, and tiramisu as well. And the donuts, of course, that I brought. With all this healthy food with Diet Coke or Diet Pepsi. It's so funny. It's so funny. Like, we are eating all this unhealthy food and then we try to opt for Diet or Coke Zero or Pepsi Zero. Yeah, they were kind enough to let me start or have the honor of putting the food first. So I'm grateful to them. Thank you so much. Usually, it's based on seniority. So yeah, I'm kind of the senior most Pakistani guy right now in Cyprus, let's say. And they all are seniors, but like, yeah, they give me a lot of respect and love. And I'm forever grateful for them. Right now, we are all like, waiting for others to go ahead and put food. That's so nice. It's a very sweet gestures by the host and for everyone else. Like, they are letting the guest go in first, and then whatever is remaining,
the others share. Me busy putting Coke Zero. I like Coke Zero, Pepsi Zero, I mean, and joking around on who is taking how much food. That's me bullying other fellow students and people. Right now, Shazeb is making the raita. Raita, I don't know if you guys know, yogurt with some water and herbs. Asan came and sit next to me and is focused on his food. I like it. When food comes in, we don't bullshit, okay? We don't talk. We only focus on our food. At the back, they are bitching. They are bitching around who's gonna eat what, he's gonna eat first. But it's fun. It's fun. Rehan Saab standing on my left, focusing on what I got, how much I got, and where did I get this coke from. All his eyes very focused on my food. I don't know why, but yeah. He's my thin friend, but he eats a lot. Oh my god. Oh my god, he eats a lot. You haven't seen him. But I don't know where does it go. Maybe his digestive system is very good and metabolism is excellent. Now Shadev is putting some rice for himself. The poor guy was cooking. Of course, another friends were helping them, but yeah, he and Asan cooked a lot for us, and according to them, they were cooking for 4 hours. But the good thing about lunch is obviously like the time of the event. So two of our friends came in early and helped them actually cook. So we all gathered around 12:30. We talked, we cooked, and the lunch was served around 2 p.m. and we were busy eating and yapping and eating and yapping. You know, I am intentionally doing a voiceover for the initial part of the video because the rest of the video, like after 2 minutes, is gonna be mostly in Urdu. Remember the conversation we had once before in the same setup? We were talking constantly about some stories of my friend arrival at the airport. So we this time are going to discuss, I don't know what, it's a candid moment, we never plan it, and we will record whatever bullshit we speak. So but it's mostly in Urdu, so if you are someone that doesn't understand Urdu, I am sorry for that, but thank you for still hanging on. And but it's fun if you just hang in around. I'm sure you will like the overall vibe and the atmosphere, and you can try to guess what the conversation is about, to be honest. It's you're gonna like it. It's different. I don't know if in your areas you guys do this kind of gatherings for food and for gossips, but yeah, we this is part of our culture, to be honest. Meanwhile, the food was yummy and everybody's so focused on the food. Everybody's going for round two, round three, round four. It was nice. It was nice. I also enjoyed. It was my first meal of the day because I woke up late and I joined around 12:30. And I was waiting till 2:30, so I was like looking at the food and it was making me hungry. And of course the smell, it keeps your hunger more or alive. But yeah, Asan serving everyone, trying to share the best part of meat with me. He's now going to Bulgaria and he was also sharing his experience with the Bulgarian embassy where he got the visa, single entry Schengen visa. So now not only is he going to see Bulgaria, but he's also traveling to France and Italy. And Rehan is very focused on getting this information because his intentions are something similar. Not to run away, but he wants to travel and see the different European countries because we'll have Christmas break soon and there are a bunch of holidays. And in this season, mostly the flights are expensive, but it's always good to have the information with you. And then whenever you are ready, you can actually explore it. Yeah, I was done here mostly. I had my 3 rounds of good food, 4 glasses of Coke Zero. It was fun. It was fun. I really liked the food, loved the host. The food was yummy. And I love chatting around Asan and Shazib and everyone else. They really respect and love me, and I can see that. I'm grateful to that, to them.
And also, like, whenever we meet, like, we all have stories to share. Like in our daily life, Mufti Saab is also a legend and a happening personality. So whenever we meet, we talk about a lot of stuffs. Meanwhile, Rehan is still eating. It's 40 minutes down and he's still eating. My thin friend is going to be not thin anymore. We have two more people in our conversation, which unfortunately you cannot see now because they are sitting opposite to me and they are like away from the camera. But they were the limelight of this evening as well, this day as well. Here I'm explaining my experience with the Schengen visas and embassies and what things they can do to fasten up their procedure. Also, another hot topic for our discussion was is and if Cyprus is going to join the Schengen zone or not. My opinion is like right now we are in a position with a very strong chance. If it's not going to happen now, I don't think so it will happen anytime soon. Right now we are in the best of our states to get this approved. But I don't know the democracy in the above European Union and stuff like that. I think this is only my wish. I think my wish is getting in way of what the reality is. But yeah, these are my 2 cents. I strongly support it, and it will be very beneficial for people like me with the visa status of, let's say, researcher in Cyprus, because I cannot travel to different Schengen zone with my current visa, and I have to go through an embassy and a long-awaited visa procedure to travel. It's tough, but yeah, I'm doing it every year. I have one visit every year to the Schengen zone, which is, I think, very good not only for your mental health, but I'm glad to meet some of my friends across different countries of the world, and yeah, it freshens you up, I think. Asan and Rehan are still eating, focusing on the food, and I'm only focusing on Coke Zero. Oh my god. The voiceover is so funny. I'm doing it for the first time, and I don't know if you guys will like it, but I've intentionally put it in English so that we have something for the English listening subscribers as well for this channel, and which I have the most, I think. Right now, Rehan Saab, if you focus on my left, is walking here and there because he ate a lot of food. Now he is in the mission of convincing everyone to make tea. He wants tea. Tea is like a British black tea with milk with some cardamom. Yay! So now I think he has convinced at this point Hassan and Shazeb, our host, to make everyone some tea. And this tea is basically the sign of a beginning of a session for my YouTube talk. So yeah, guys, stay tuned. आप दावत पे हरामी मुझे कहता है क्या सीन है लंच पे चले मैंने कहा लंच कहता है आप ही तो कह रहे थे कि लंच का कोई सीन है मैंने कहा यार मैं किसी ने शतेब ने मुझे नहीं बुलाया अच्छा मैंने कहा हाँ कहता है मैंने कहता है आप नहीं जा रहे फिर मैं भी नहीं जा रहा 2 नंबर झूठ मार रहा होगा इसको बुलाया है मैं कहा इसको कैसे नहीं बुलाया जा सकता तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जा रहा मुझे बुलाया नहीं शतेब ने कहता है अच्छा फिर मैं भी नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं जाऊंगा मैंने कहा यार इतनी गैरत मत कर जचती कहता नहीं डॉक्टर साहब आपसे मोहब्बत है नहीं कहता आपकी इज्जत और भी बढ़ हाँ बात तो मैंने कहा ये कह के मेरी आंखों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई मैं कहा अच्छा पहले भी मेरी इज्जत थी ये वही बंदा जो अपनी इज्जत को खुद नहीं जानता कसम से फिर जब मैं इधर आया ना तो मैं पहले आ गया मैंने इनसे पूछा कि यार उसको बुलाया है कहते हैं हाँ कहते हैं आ रहा है लोकेशन शेयर कर दी है मैंने कहा नहीं अब ये बात हो गई अब मेरी बात नहीं सुनी जी जी मैंने शादी से पूछा हाँ जी मैंने शादी को कहा मैंने कहा उसे बुलाया उसने कहा मैंने कोई जवाब नहीं दिया ये जवाब मेरे वो कह रहा है नहीं बंदा बैठा हुआ डिलीट कर दिया सर मैं इसको टैकल करने का बेहतरीन तरीका एक लाइन में मैं आपके सारे अगले आने वाले सालों के मसले खत्म कर दूंगा जब कोई दोस्त ये कह रहा हो ना मैं नहीं जा रहा
तू चला जा। आपने कहना ये नहीं कहना कि मैं भी नहीं जा रहा, आपने कहना यार तू चल, है ना, दिया सीधी पैसे यार चल तू मेरे नाल चल यार। मैंने कहा शायद ये इसको नहीं बुलाया होगा, मैंने शादिर को कहा, मैं कहा यार शादिर उसे नहीं बुलाया, कहता यार उसे बुलाया है। अच्छा तो मैंने कहा ये मुझसे 2 नंबरी कर रहा है। मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की। अच्छा अब मुझे एहसन ने बुलाया था। मुझे शादिर ने नहीं बुलाया। अच्छा मुफ्ती भाई, मैं घर में वेट कर रहा हूँ, मैं कहा यार ये बंदा वैसे जुबान की तो इसे बवासीर है ही है, लेकिन ये आएगा मुझे लेगा पिक करेगा। अच्छा मैं वेट करता रहा, 2 बज गए। उस शादिर ने कहा था 1 बजे तक आ जाए, 1 से 2 तक आ जाए, 2:10 हो गए। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कहा शायद आएगा। अच्छा मैंने उसे इसका मुझे मैसेज आया, कहता आसिफ भाई तो पहुंच गए हैं। अच्छा मैंने कहा बहन चो ये वाकई गांडू निकला। सर एक और मेरा मसला है, हमें इन्होंने पहुंच गए थे, वापस गए। हम सबको इन्होंने 12 बजे बुलाया, आपको 1 बजे क्यों बुलाया? नहीं वो सुबह इन्होंने कॉल की थी तो उस टाइम लेट हो चुका था, तो मैंने कहा। और दूसरा सर मुझे भी इन्होंने भी नहीं बुलाया, मुझे ये मुफ्ती भाई ने मुझे आपने जाना है। अच्छा सबने एक दूसरे को जब ये उसने कहा ना ये पहुंच गए हैं, तब मैं निकला हूँ। मैंने कहा ये 2 नंबरी कर गया यार, मुझे अब दाएं गलती किसकी है? इसकी है मेरी। मैं तो वेट कर रहा हूँ उधर। सर मैं नहीं सर, ये आप दोनों कमरे में जाके डिसाइड करेंगे। मैं सर वो होता है ना हमारे पठानों में होता है वाक देना, यानी अब मैं इख्तियार दे देता हूँ, मैं इख्तियार दे देता हूँ। ये जाने तो वो जाने, मेरी तरफ से इसको इजाजत है। अच्छा मुझे समझ में आ गई, ये आ चुका था, ये आ चुका था। उसने शादी को कहा इसकी लेंगे, मैं जाता हूँ, मैं बाद में आऊंगा। वैसे जिनके में ये होता है ना, बात दे देते हैं, इसमें फैसले का हाथ। मैं समझ गया। नहीं सर, आप पता है आपका मसला क्या था? जब आपने भड़की मारी आप नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाता, तब आप मुझे तब चढ़ी। मैंने कहा ये देख ड्रामे कर रहा है। मैंने कहा अच्छा मतलब अगलों ने दावत दी है, रिज़क को लात मार रहा है। तो मैं नहीं आता, जब इसने कहा ना ये आ गया तब मैं आया। अच्छा नहीं सर फिर तो आप अच्छे फिर तो आदमी अच्छे आदमी हैं। हैं। नहीं आदमी तो बहुत अच्छा है। पोस्टर को उठा ले इसको, उठा ले। जा इसके भी पाँव में आजा। पूरे 2 घंटों में से एक बंदा है, आजा पाँव में बैठ जा। अगर आप इनसे पहले आगे होते ना फिर सर मैं लानत भेजता। नहीं सर असल में मैंने कहीं जाना था, अच्छा। तो मैं इसलिए हाजिरी लगा के आया। मैंने कहा यार चलो मैं हेलो हाय कर दूं। देख है ना कि तैयारियां हो रही हैं, सारे बंदे काम पे लगे हुए हैं, मोटिवेट किया कि लगे रहो मैं आया। वो अंदर से सारे मिले हुए हैं, मुझे पता ही नहीं है। वो दोस्तियां बन गई हैं, काकोपेत्रिया गई हैं, फिर कुपरनूता और कौन सा विलेज है थ्रोनी और क्रिसमस विलेज फिर क्या है अच्छी सर वो भाई पहली दफ़ा जब गए ना कि यार भाई ने इनवाइट किया है और इस तरह, मैंने कहा प्लीज़ जाएं क्योंकि मुझे पता है आपकी इनकी तबीयत सेम है। मैंने कहा आपकी बड़ी जमेगी, आप जाएं। अब बंदा चला गया, अब दूसरे दिन तीसरे दिन पूछा नहीं इसने मुझसे, बस जो भी था फिर वो ऑटो पे हो गया ना, ऑटो पे हो ऑटो पे गाड़ी आती थी, लेती थी, फिरती थी और फिर वापस। फिर ये भी मेरा कसूर है। ये भी कसूर है। मजे की कसूर बात ये है कि रात मजे की की बात रहते थे। मंडे को अब बंदा ट्रिप करके आता है ना तो फीडबैक आता है कि यार वाली कहानी है। नहीं सर फीडबैक आता है कैसे रहा ट्रिप। पता है मुझे क्या वो कहता है? आपका ख्याल रख रहा है, नहीं मैं आया लैब में, ये अभी क्या है? होते ना प्यार नहीं करता। मोहब्बत दुख है ना, इसकी भी मोहब्बत देखना। अभी अच्छा नॉक किया, बड़ा परेशान था। मैंने कहा पता नहीं क्यों, 53.5 यूरो लग गए हैं, बहुत खर्चा हो गया, हिसाब किताब कहते बजट आउट हो गया। ये पहले महीनों में होता है, फिर ये ऑटो पे हो जाता है। सर एक असूल कोई लोग कहते होते हैं कि दोस्तों को ना ध्यान से मिलना चाहिए। दोस्तों को मेरे तो दोस्त ही यक। तो फिर अब आप ये देखें, अगर ये यक है तो इसके दोस्त कितने बड़े यक होंगे सर। तो मेरा बस नहीं चलता, मैं इसको आगे बेच दूं। सर अगर आपने इसको बेचना है ना तो इस बंदे को बेचो सर। ये अच्छे पैसे देगा, लेकिन ये है बड़ा बेवकूफ। ये इसको लेकर ही कहता है ये बेवकूफ है, मैं भी लेकर। वल्लाह कसम से ये बात इसने 2 बातें की है पूरी महफिल में, हाँ लेकिन बड़ी वो अब मतलब बोलता नहीं है। हाँ बिल्कुल वो बुलदाई। महफिल लूटी है। वो कहते एक मुहावरा है ऐसे, मुर्दा बोले ना बोले तो कफन फाड़ के बोले। ये वो वाला बात है। डॉक्टर साहब पहले जब मैं नया आया था ना भाई साहब,
डॉक्टर साहब बोलते थे, अब डॉक्टर, फिर डॉक्टर पे आए अच्छा, हैं, डॉक्टर अब तू पे आया है। अभी अल्लाह खैर करे आगे क्या बताएगा। डंगा मैंने डॉक्टर। तो भी मैंने सुना था कि यहीं गड़े होंगे सर, वो पता नहीं कौन कह रहा था, मुझे नहीं पता था कह रहा था कुछ। तो आसिफ आप भी उसकी जिस तरह जिस हिसाब से उसकी माशाल्लाह और मैं भी खातिर तवाज़ा कर रहे हैं उसके तो आप इस मिशन पे हैं कि जाते हो एक और आसम यहाँ छोड़ के जाऊँ। सर वो खुद कह रहा है आप बैल मुझे मार, मैंने प्यार मोहब्बत से, मैं इसको कभी नहीं तंग करता, इसका मैसेज आता है जब इसको कुछ चाहिए होता है। मुझे पहले तो ये इरिटेशन होती है, हाल चाल पूछता है नहीं, हाँ बस काम मुद्दे पे, और ऐसा लग रहा है कि यार मैं कोई यूज कर रहा है मुझे। सर मैं तो खुद ही इन्होंने कहा मैं सपेरा हूँ, मैंने कहा चलो सपेरा बढ़ गया तो सपेरे के तू खा गया, सपेरा मार दिया। तेरे सांपों ने ऐसा घेरा, सपेरा खुद अपनी जान नौकरी बचा। खा गया, घर खा गया, गाड़ी खा गया, बाइक खा गया, ज़हनी सुकून खा गया। अभी कलफ वाला कंबल खाना वो रहता तो था। वो बता मैं नहीं सकता स्टोरी, वो स्टोरी मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसको कंबल देना बड़ा खतरे की बात है। यार मैं भी कल ऑफर आए ना आयसन भाई। नहीं मैं चाहे बस अच्छा। आ गई है। मैं भी कल इनको कंबल के ऑफर दे रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब मुझे समझ आई मैंने कंबल पड़ा हुआ कैसे नहीं दिया। इनके कंबल से खाली कलफ नहीं, तेल भी नहीं रहता। वैसे डर के वो मैं नहीं दे रहा। फैजान भाई का है वो भी फैजान भाई के, वो भी बड़े लेवल के सिंगल थे। ये YouTube पर लिंक फ्रांस जा रहा है। महफूज किधर है ये? वो फ्रांस जाएगा, फ्रांस जाएगा, फ्रांस जाएगा। जिया मुझे फोन कर रहा था, उसे मोबाइल देना होगा, हाँ ले जाना उसको। दे देगा तो ले जाऊंगा, मैं तो नहीं बोल रहा उसको आप मुझे दे, उसको जरा अल्फाज इस्तेमाल, हेलो सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, तबीयत ठीक है, एक काम है कर देंगे, मैं बोलूंगा हाँ बता क्या काम है, मैं बताऊंगा हाँ भाई बोल क्या, ये इन्होंने तरीका बताया कि हाँ बताएं क्या काम है, चलो मैं देखूंगा, मैं कल बताता हूँ। तो इसी में जब काम होता है तो मैं भाई को याद करता हूँ। लेकिन आप वो शुरू वाली बातें नहीं ना कह रहे। वो डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहे हैं। इसको भी फोन चाहिए यार, कोई बंदा है यहाँ पे कोई किश्तों पे फोन देने वाला, किश्तों वाला तो नहीं। क्योंकि इसको भी फोन चाहिए, अगर आप भी ले रहे हैं तो अले ले ना। असल में ये सेपरेटली नहीं ले सकते। क्या चीज सिपरेट ले सकते हैं? नहीं लेकिन कोई ऐसा नहीं होता। अच्छा वो किस्तों पे ले सकते हाँ, हैं, आप लेकिन वो नहीं ले इतना एतबार नहीं करेंगे जो है। क्यों करेंगे? इसको मैं सर मुझे शर्म आ जाती है, अगर कोई मुझे आधा कप दे ना तो मुझे शर्म आती है। ये तो उसने 2 दफा तुम्हें कहा चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं, नहीं तू समझा नहीं। अब वो डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकता कि चाय पर। वो पहले उसने जबरदस्ती चाय बनवाई, ऊपर से तुम आधा कप दे रहे हो। एक तो पहले मैं शर्मिंदा हूँ, फिर पूरा काम भी नहीं हो रहा। कुछ कौन ज्यादा पीता है उसको डाल दो। यार थोड़ी सी चीनी भी डाल दो, मैं थोड़ी सी मीठी मिठाई वाला हूँ ना, और थोड़ी सी चाय भी डाल दो। आपने केक साथ नहीं खाना? नहीं, थोड़ी सी चाय और डाल दो प्लीज, थैंक यू सर। तो अभी आपका क्या प्लान है आगे, किधर जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं? मैं वापस तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो दिसंबर के एंड में जा रहे हैं? नहीं अभी मैं संडे को जा रहा हूँ। कल जा रहे हैं। कल आप फ्राइडे को जा रहे हैं? पाकिस्तान यूएस जा रहे हैं ना? नहीं पहले शादी होगी फिर होगी ना कुछ। पहले पाकिस्तान जाएंगे। ये जब आए थे पहली दफ़ा ना, तो महफूज भाई से उनकी दोस्ती हुई थी थ्रू लिंक्डइन या, तो महफूज भाई आई डोंट नो, हम किसी डिनर पे थे, कुछ था, कोई बात हुई, इनने कहा एक रूम चाहिए, मैंने कहा मेरे फ्लैट में है, तो कहता है बंदा, मैंने कहा ठीक है, तब मुझे लगा इनके दोस्त हैं, वो बाद में पता चला ये तो बस लिंक्डइन के दोस्त हैं। फेसबुक के दोस्त देखे होंगे तूने, मैं आगे पीछे देखे होंगे, लिंक्डइन के दोस्त हैं। लिंक्डइन पहले प्रोफेशनल। मुझे महफूज जो है ना वो घुमा रहा था यूनिवर्सिटी वगैरह ना। हम लाइब्रेरी गए भाई, बुक के अंदर लग के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं आसिफ भाई। वहाँ मिला था मैं चड्डा में मुझे फिर जब बाद में मैंने जाना इनको, मैंने कहा ये पढ़ने वाला तो नहीं लगता। ये तो मेरी बेगम भी कहती है कभी कभी, यार पीएचडी हो गई तेरी, एक किताब तेरे घर में मैंने नहीं देखी। तो सर अल्लाह का करम है, कभी कभी हम लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने।
इसने भी 2 बातें सीख ली। अल्लाह, ये दिन भी मैंने देखना था, किस किस के मुंह से बातें कर रहा हूं। उस दिन भाई ने बुलाया था, मैं झूठ नहीं कहूंगा, भाई ने मुझे वेडनेसडे वाले दिन मैसेज किया, शाही माश दाल और बड़ा कोई वैशी किस्म का मैसेज किया था, चपाती और अचार और साथ में मेन्यू भेज दिया था। मैंने कहा भाई आज तो वेडनेसडे, आज तो पार्टी वाला दिन है। मैंने कहा तू फ्रिज में रख ले, मैं कल आ जाऊंगा। यानिस ने पार्टी दी थी, क्रिसमस पार्टी। यानिस ऐसे बोल रहा है तेरा प्रोफेसर है। मैं प्रोफेसर को पता है क्या बुलाता हूँ? बाप, खुदा की कसम, उस्ताद नहीं, बाप। मैं कहता हूँ कोई भी अब्दुल होता था ना, किधर जा रहा है यार, बाप का काम है यार, बाप ने तंग किया हुआ है, बाप ने, तो हम ये रिस्पेक्ट। यानिस नहीं सर, मेरा बाप इसके पापा जी पीछे स्कीम थी बैठे हुए। सर आपके वालिद नहीं है, बाप होता है ना वो बाप, कैरेक्टर है ये। नहीं हो क्या बोल रहा मैं? रूहानी हो रहा। तो उसने क्रिसमस पार्टी में कोई फिर क्रिसमस गिफ्ट्स भी दिए। आपने उनको क्या गिफ्ट दिया? 22 दफा अस्सलाम वालेकुम कहा है। समझ गया तू? पहली दफा गिफ्ट्स लेके आया प्रोफेसर के लिए पैक करके, 2 मेरा दिल बहुत जला था। मुझे यूं हाथ में गिफ्ट दिया, ये ले। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना गिफ्ट का, वो मुझे मिला नहीं। शुगर भी यूं दिया। हाँ, ये भी मुंह में नहीं मारा, तेरी मेहरबानी। शुगर गिफ्ट दिया। नहीं सर, भाई अच्छे हैं। मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, उसके पैसे भी नहीं लिए, तो अच्छे हैं। कोई 8-9 हज़ार रुपए का सामान दे दो ना। वो कह रहे थे ये भी मेरी तरफ से गिफ्ट है। फिर मैंने बड़ा अफसोस किया, मैंने कहा कोई महंगी चीज़ ही मंगा लो। तो यही करना था इसने। लेकिन भाई ने यार ओवन दी है, फिर पानी की बोतल दी है, अब 2 प्लेटें दी हैं। बस कंबल कलम वाला नहीं। कंबल खुदा की कसम में देने वाला था। इसका वो जो काउंटर सवाल आया ना, मुझे उसने परेशान ही कर दिया। यार बड़े अच्छा हुआ है यार। कल ये न्यू वर्ड ये- डिक्शनरी। अच्छा, ये कोड वर्ड है ये सर, मैं आपको बताता हूँ ना, ये 40 साल के सिंगल लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जो कि बहुत वाहियात, होगी ना। आसिफ जेन जी की जो वोकैबुलरी है, उससे पीछे वाली वोकैबुलरी ये वाली है। खुदा की कसम। जेन जी की वोकैबुलरी डिफरेंट हो गई है। वो जब इनको पता चला ना, मेरी और इनकी मुलाकात भी ऐसे गैबी तारुफ था उनके थ्रू, कि ये नए आए थे और इनका प्लान क्योंकि डिले हो गया था, वीज़े की डिले होने की वजह से, तो इन्होंने जल्दी आ जाना था, अगस्त में इसमें आ जाना था। लेकिन भाई इधर ही थे, तो भाई ने बड़ा मुझे कहा कि यार प्लीज़, अगर आपके दोस्त, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इवन सिक्योरिटी भी छोड़ दूंगा, जबरदस्त। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस के साथ रह लूँगा। फ्लेक्सिबल। लेकिन क्योंकि आई डोंट लाइक लिविंग अलोन, जी सही बात। अलग कंट्री है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, बिल्कुल और विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि यार बंदा बीमार हो जाता है, इतना तो बंदा हो ना कि यार पानी दवाई ला दे, कोई ये बात घर फोन ही कर दे यार, आजा डेड बॉडी उठा ले। सही बात है। हाँ कोई, तो इससे मुझे बड़े प्यार आसिफ वो डायरेक्ट है, तू डबल डायरेक्ट है यार। नहीं यार ये तो आपने बदला लिया है। नहीं सर, बात ऐसी थी ना कि ठीक है। तो इससे मुझे स्टोरी की यकीन करें, आई फाइंड हिम अ वेरी जेन्युइन ऑनेस्ट पर्सन। मुझे लगा यार बड़ा अच्छा प्रपोजल है, बंदा सेक्रीफाइस भी कर रहा है, जगह का भी कोई इशू नहीं, पैसों का भी कोई इशू नहीं, अच्छा कमरा उसे दे दो, कोई मसला नहीं, जस्ट सो दैट ही कैन हैव अ कंपनी। मुश्किल होते हैं, मतलब जो कि इस तरह मतलब कह रहे हैं कि तो मैंने- out of the way जाके तो दूसरे अब भाई ने बड़ी, वो होता है ना, बंदा किसी को कुछ, आप किसी को कुछ कहते हो तो इसका मतलब आप होपफुल होते हो कि यार उस तरह इतना प्यार उधर से भी आएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो इसको लगा उतना पॉजिटिव, अब वो पॉजिटिव रिस्पांस मेरे हाथ में था नहीं। जी मैंने उसी तरह उसको अमानत के तौर पे मैंने कहा एक और भी भाई आए हैं नए, जी। तो अगर आप चाहते हैं, नॉट गेट लगा। नहीं उन्होंने तो एक और ही फिल्म डाली ना, उन्होंने, उनको मैंने पूरा, तेरा भी तो अपार्टमेंट खाली। मैं वही कह रहा था ना, तो इनको मैंने कहा यार एक और दोस्त हैं, तो वो भी नए आए हैं, तो अब दोनों नई होगी, चूंकि जब 2 नए बंदे आते हैं उसका फ़ायदा ये है कि दोनों एक्सप्लोर करेंगे, दोनों नई चीज़ें सीखेंगे, तो वो सफ़र पीएचडी का साथ ही शुरू होता है। तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा फिट है, तो इसने कहा यार जब तेरे साथ नहीं रह रहा तो उसके साथ कैसे रहूंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही डायरेक्ट हो गया, मुझे क्यों ना मुझे उसके खाते में मुझे भी रगड़ दिया।
मैंने कहा यार कहते तेरे साथ नहीं रह रहा मैं उसके साथ रहूंगा जा भाई लौले मेरे लिए अलग फ्लैट ढूंढ कसम से बकवास कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लग रहा ये बकवास कर रहा है। भाई को फिर सच नजर आ रहा है। भाई को फिर मैंने कहा यार हम पठान लोग हैं, हम नहीं रह सकते इन लोगों के साथ, ये लोग बड़े अजीब होते हैं, तुम्हें नहीं पता, आप देखा बड़े अजीब होते हैं, खुश नसीब हो तुम ऐसे लोगों से दूर हो। मुझे लगा था कि ये वो लेदर का बड़ा मस्जिद नहीं है, जी, जी, उसके अच्छा। साथ एक वो बिल्डिंग सी है जिसमें लोग वो बैठते होते काम करते हैं, हाँ। वो वकार उधर ही बैठते हैं। साइंस साइंस है, अच्छा, अच्छा। मुझे लगा था शायद इन सब के घर इंक्लूडिंग ये शजीब, मुझे लगा इन सब के घर उधर अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो उधर से मस्जिद और मेरा फ्रेंड से सेंटर सब करीब पड़ता जी, है। सही मुझे नहीं तो पता इतने दूर है। इतनी दूरी तो दूरी मुझे है अगर बात पता हो तो मैं कहता भी हूँ। ये तो चलो अच्छा हो गया फिर भाई। नहीं अब तो सब अच्छा हो है। गया, आप तो सब बच्चों के, लेकिन उस टाइम अब तो बहुत उसको बुरा शुक्र हुआ करे था। बेवकूफ आदमी उसका रूममेट ये तो अल्लाह ने उसको रहमत किया। इसकी माँ बाप की दुआएं, इसके नेक अमाल, ये इसकी जो मस्जिद में नफलें, जाके नमाजें पढ़ता रहा। वो जो दुआएं थी उसी की तो वही तो दुआएं कबूल। रूममेट नहीं बना। ये जो सारे मेरे पीछे अब ये इसके सारे मथे होते हैं अब। एहसन भाई इधर आ जाए ना आप गलत जगह पे खड़े हैं ना, आप बहुत गलत जगह पे खड़े हैं। हाँ ना, थैंक यू। तो ये सीन था। गलत है वैसे। हाँ नहीं नहीं कोई मैं कह रहा हूँ मेरी ना लेना शुरू कर। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम ना। यहाँ हो ना, ये हॉट चीज है। बारी बारी पास ही रहते हैं। नहीं सर, ये भाई है नंबर हमारे। लगाओ। नहीं ये भाई है हमारे, बहुत अच्छे आदमी है। ये कोई आसिफ दूसरी की तीसरी महफिल हो गई है कि जब भी होता है ये बड़े अच्छे भाई है सारी सर मैं महफिल- आपको उस दिन तो हमने चला आपको के मारना। नहीं उस दिन हमने की थी एयरपोर्ट स्टोरी। हाँ जी। आज हम आगे की बात करते हैं। भाई आ गए हैं, अच्छा, अच्छा। भाई ने लैंड कर लिया, जबरदस्त। भाई ने ARC अप्लाई कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब भाई के दो मसले और हैं। आसिफ भाई सब सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बड़ा इन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया, कहता है यार आप नहीं, तो हो गया था ये। हो गया था, ये सब हो गया नहीं था। ये वाली बात भी हो गई। ये वाली हो गई थी, रिपीट कर लेते हैं यार, फिर से मजा आ रहा है। कहते हैं बस आपने अब मेरे दो और काम कर। ऑडियंस ना बोर हो जाएगी। खैर है सर, क्या ऑडियंस 50 लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 12 लोग तो यही। क्वांटम कंप्यूटिंग से तो हाँ, बेहतर क्वांटम। है। तो कि हम quantum कहते हैं, बस computing- आसिफ भाई 2 और काम करने हैं, 2 और। मैंने कहा यार चलो अल्लाह खैर करे, अब ये कहेगा GC का डॉक्टर देखना है, क्योंकि हमारी सैलरी में हमें डॉक्टर भी इंक्लूडेड है, इसको अभी तक नहीं पता शायद। तो मैंने कहा शायद इसको इसमें पता लग तीसरा ब्लॉग आएगा हाँ, ना। इस पे अगला करेंगे। मैंने बताया हुआ है डॉक्टर है। तो मैंने कहा शायद यार टैक्स वैक्स का कोई रोल होगा। इनरोल करना हाँ, पड़ता है। कोई डॉक्टर या मैंने कहता है बस 2 और बंदे हैं, उनको बुलाना है। मैं देख रहा हूँ, अच्छा। दूसरा कहता है यार मैं नियत से आया हूँ कि यार शादी भी करूँगा, माशाल्लाह, विच इज़ वेरी गुड, नियत साफ है। शुक्र है। तो हाँ नहीं सर, नियत साफ है, मैं अच्छी बात की, इसने कोई गलत बात नहीं की। नियत का अच्छा जन्म है। हाँ। लेकिन फिर मैंने आगे फिर काउंटर सवाल तो बनता है। जब मैं इनके साथ फ्रेंड हुआ ना, तो बेसिकली ये मेरे, हम जानते हैं क्लास फेलो हैं, लेकिन जो चड्डी बड्डी हैं इनके 2 और दोस्त हैं जो कि मेरे बिल्कुल ब्रदर हैं, यानी हम सेम लेवल पे गप्पे चप्पे, उनसे मेरी बहुत बनती है। उनको मैंने बाकायदा फ़ोन किया, मैंने कहा यार तुम लोगों ने मेरा ख्याल ही नहीं किया, मुसीबत मेरे गले बांध दी, ऐसे कर दिया तुमने, भाई के साथ अच्छा नहीं किया ना। कहते हमने अपनी जान छुड़ाई। ये ऐसे मुकाम पे आ गए थे, या खुद को बचाना था या तुझे, तो हमने खुद को बचा लिया, मैं माफ़ कर दे। तो मुझे लगा वो जो 2 लोग हैं ना, तो वो अभी उनके नाम आएंगे। तो मैंने कहा चलो अच्छा कौन 2 लोग हैं, तो इन्होंने एक तो है नहीं दोनों केस ने जो ना, अभी ये कैमरे के सामने ऐसे बोल रहा है, ऐसे कोई नाम नहीं। इन्होंने कहा यार एक ये फलां और एक ये बता फलां, ना नाम कौन से थे? एक भाई है इनके और दूसरा और एक पड़ोसी है, पड़ोसी केड़ा? पता नहीं मुझे तो याद ये नहीं है, लेकिन बकवास कर रहा है। कहते हैं पड़ोसी। मैंने कोई कहा- पड़ोसी नहीं है। मैंने कहा अच्छा पड़ोसन तो नहीं है। हो सकती है पड़ोसन हो सकती है। देखो सेफ प्लान क्या बन रहा है, अगर 2 बंदों में से एक भी वो आ जाए तो दोनों मसले हल हो जाएंगे। तो देखिए, दोनों ने रहना इसके फ्लैट में ही है, फ्लैट में है। तो इसका रेंट तो हाफ हो जाएगा। जी। तो इसने अच्छी प्लानिंग की। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते एक भाई है अच्छा। और दूसरा अरसलान है, वो वो जो हमारा मोटरसाइकिल mutual
हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है और इसका भी फ्रेंड है। नहीं मेरा तो वो भाई है, उसको तो मैंने कहा वो जब किया तेरा तो दिल मतलब करे मैंने कहा। भाई ताबेदार। लेकिन उसने ये नहीं बताया था, ये कोई और था। मैंने फिर उनको फोन किया, मैंने कहा यार वैसे तो मैं खफा हूँ, लेकिन मैंने कहा आपको भी जरा एक न्यूज़ दे दूँ। मैंने कहा भाई साहब फरमाइश कर रहे हैं 2। कहते हैं क्या? कहते हैं पहली फरमाइश तो है कि शादी हो जाए। कहते ये तो हमें पता था। कहते इसका मसला तो तू ही हल कर सकता है। कहते टक्सिला से लेके रहीम यार खान तक ऐसा घर नहीं है जिसका दरवाजा हमने नहीं खटखटाया। ठीक है, हर घर की बच्ची इसने देख ली है, या उन्होंने इसको इनकार किया या इन्होंने इसको इनकार कर दिया। तो सर एक बात मैं ऐड कर देता जी, हूँ। जी, सर। अब तो वो चिप्स वाली रेडी है ना, उस पे जाऊं तो फोटो निकलती है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई ने जब इधर आए तो इन्होंने मुझे 2 डिमांड्स की। तो उसमें से ये था कि 2 लोगों को बुलाना है और एक शादी। तो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं 2 बहुत अच्छे। तो मुझे जहन में था कि उनके नाम लेगा, उनके नाम नहीं थे, बच्चियां थी जो भी थी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या आपको पता है वो 2 नाम कौन से? कहते हम बड़े क्यूरियस हैं, हमें ये 2 नाम पता करके बताओ। मैंने कहा बड़ी खुशी के साथ, इसमें आपका कोई नाम नहीं। कहता है लोड़ू। हमें पता था ये चिद्यापक करेंगे। आपने बिल्कुल ये यकीन रखना है कि ये बकवास कर रहा है। जो भी बातें कर रहा है ये बकवास कर रहा है। नहीं ये महफिल की रौनक है। तो बहरहाल कहानी नहीं, ये कंटेंट। हाँ, बहरहाल जो हुआ, क्वांटम नहीं है लेकिन कंटेंट है। मैंने आगे इधर से सुना उधर से निकाल लिया। मैंने कहा आइंदा तो भाई का बस हो गया, ये सजा हमने कर ली, गुनाह हो गया, बस बर्दाश्त करता जा। जब जब इसको मैं मिला हूँ बर्दाश्त की और पतली गली से मैं निकलता सर इस गया। दफा तो सिर्फ आपकी नौकरी और गाड़ी का हुआ ना, अगली दफा आपकी वफात होगी सर। अगर किसी और को बुलाया ना हमने। आसिफ भाई आप इसकी वफात करें तो वो आप ही वफात हुई है। कसम से ये तो बड़ा मुझ पे इसका पैर भारी है। आपको पता नहीं है क्या क्या स्टोरियां हैं सर। अल्लाह हमें बचाए इसके शर से। आमीन सर। आमीन सो आमीन। चलो जी कंटेंट हो गया है। नहीं अब की बातें कर रहे हैं। यार ये कितने खुश नसीब हैं, इसको पता नहीं है। लोग इधर ठोकरें खा रहे हैं, किधर तनख्वाहें। सही ठीक है, ही वॉज लकी, इधर उधर ऑफिसर लेवल की जॉब थी, लेकिन इतनी अच्छी थी तो छोड़ के क्यों आए? कुछ तो बात है जो मुझे नहीं पता। हाँ कुछ तो है। नहीं बताया उन्होंने कि ये सिर्फ फाइलें पकड़ते थे। हाँ। सर यहाँ साइन कर। फिर इज्जतदार नौकरी है सर, सही बात है, रिस्पेक्ट है सर, रिस्पेक्ट है। हम जिस लेवल पे भी मेहनत करने वाले की भाई रिस्पेक्ट करें। फिर भाई एक और दफ़ा इन्होंने मुझे कहा, फिर जब मैंने देखा ये लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं कि किसी तरह भाई को फिट कर दें, तो मुझे लगा शायद वाकई उसको ज़रूरत है। मैंने इसको बड़ी ईमानदारी से कहा, देख तेरा भाई है, मेरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। 30 लाख रुपए लूंगा कि उसमें उसकी जॉब हो जाएगी, तनख्वाह भी मिलेगी। मैं बेरोजगार हूँ ना, मैं बेरोजगार हूँ, तो मुझे तू 30 लाख दे, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ज्यादा नहीं है सर, खुदा की कसम। कॉलेज वालों को लाने के लिए मैं यही 45-50 लाख मैं इसको यही कह रहा था। मैंने कहा तू भाई है, तुझे मैं और भी डिस्काउंट करूंगा। हाँ ठीक है। और पैसे भी मैंने कहा तू इधर आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद देना। ठीक है सर। मैं नहीं भाग रहा। बिल्कुल सही है। भाई ने कहा नहीं, अच्छा 30 लाख और जो 30 लाख तो हमारी जमा पूंजी भाई 1800 तनख्वाह लगेगी 1 महीने की। हाँ 1900, तो हिसाब लगा लो 6 लाख रुपए महीने का और 5 महीनों में पूरे। सर ये और लाइफ सेट। दोनों भाई और आगे अगले साल ये शेंजन में हो जाएगा और पूरा यूरोप घूमे। वाह, 30 लाख तो ये कहेगा मैं। बाद पासपोर्ट मिल जाएगा आसिफ भाई की तरह। हाँ। और फिर तू शादी भी इधर कर लेगा, तेरे बच्चे भी यूरोपियन, गोरी गोरी आंखें, लाल लाल आंखें, गुलाबी बाल। अपना रेट बढ़ाया सर, 30 लाख बड़ा कम है ना, मैं भी सोच रहा हूँ। 60 लाख मांगे कसम से पर कोई देगा नहीं ना 60। कोई दे या ना दे, इसके तो बस की नहीं है। मुझे नहीं लगता दुनिया दे रही है सर। ये बात आप सर आप बताएं, आप ईमानदार आदमी, हम सब में से 30 लाख कैसा रेट है? 30 लाख कम है। कम है ना? कम है। देख लो भाई, मेरा लिहाज नहीं करते। भाई ने मुझे भी सुना देनी थी अगर मैं गलत बात यार जवाब दो तो अपने फौजी मारी जा रही है। नहीं, अगर वो जिस तरह कह रहे हैं वो 1800 यूरो 1900 तनख्वाह महीने। तो सही है ना। इससे पूछो इसकी तनख्वाह। ये तो खुश था 11 तारीख से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मैंने कहा भाई तू 3 तारीख को लैंड हो रहा है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली 3 को। भाई से पूछ 3 का,
ये बात अच्छी है। 7-8 दिन की तनख्वाह ये खा चुका है, वो भी मेरी बनती है। सर आप इसको फ्री क्यों लेके आए हैं? पता नहीं कुत्ते ने काटा। दोस्ती दोस्ती दोस्ती। सर आप मुझे लगा दोस्त है, सांप निकला। सर इसलिए तो पछता रहा है। नहीं आसिफ भाई पैसे पूरे कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। हर महफिल में वो पैसे पूरे होते हैं। हम इसके गवाह हैं। मैं तेरे से कुछ ना कुछ ले रहा हूँ। अगरचे वो पैसे नहीं है लेकिन बहुत कुछ और है। यार ये देखिए कंटेंट बन रहा है, फिर भाई के व्यूज बढ़ेंगे, बहुत। फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसके अलावा सर कोई लेने देने वाले प्रोग्राम तो नहीं है ध्यान से इनके ये साथ? ये मेरे साथ दोस्ती नहीं करता ये ये। मुझसे ले गई देख। अच्छा अच्छा। सर आप बताएं, मैं ऐसी कोई ऑफर, मेरा तो कोई भाई होता ना 30 लाख तो मैं यूं मुंह पे मारता, और वो भी आफ्टर वर्क, पैसे इसने इंटरव्यू कंफर्मेशन साइन कॉन्ट्रैक्ट के बाद। ठीक है चलान के पैसे मिले आपको? फिर वो 30 लाख भी नहीं मिलेगा। नहीं सर, वो तो मैं इसकी, इसने अभी इसने मेरे पैसे जब मैंने जो निकालने होते हैं वो मैं निकाल लेता पैसे हूँ। अभी इसने मेरे देने हैं। ये कोई बात। बात नहीं, वो दे देंगे सर, वो दे देंगे। 15 दे दिए, 15 रहते हैं। ठीक है। वो अभी मैं टैप सेंड में फिर भेज रहा हूँ पाकिस्तान, बंद बोनस आ पर जाए। उन्होंने मुझे कहा है कि वो टैप सेंड अगर मैं भेजूंगा तो वो 8 मुझे देंगे। ये देख 2 बातें ना, एक तो मेरी मार रहा है, मेरा कस्टमर खा रहा है, एक तो बंदा होता है ना कि चल भाई मजे कर ले, मैं तुझे नहीं दे रहा, ये तो कह रहे मैं भी नहीं दे रहा, वो भी नहीं देगा। ये तो मेरी जो, एक तो बेरोजगार हूं मैं, वीजा मेरा एक्सपायर हो रहा है, गाड़ी मेरी ठुक गई है, नौकरी मेरी खा गया, घर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मोटरसाइकिल मेरी बिक गई है, मेंटल पीस इससे मेरा खराब कर दिया, ऊपर से जो 8-10 यूरो मुझे मिल रहे हैं कमीशन, वो भी खा रहा है। अब कल को ये खासों से जो तू बात कर रहा था ना वो सुन लिए इसने कि वो उसकी बहन का घर है जो 750 यूरो में जा रहा है, और जो बंदे हैं वो 8-10 लोग रहते हैं। 8-10 लोग रहे, तो फिर ये होगा। ज्यादती कर रहे हैं ये। अली भाई इसको जरा समझाएं ना। मैं सर नहीं समझा सकता, ये मेरी सर पहली और आखिरी मुलाकात है। सर गलती हो गई है, खाने पे आ गया। मुझे तो बताया ही नहीं इन्होंने सर, मैं आता ही था। मेरे तो आगे रात बड़े खराब है सर। यकीन जाने कि जब 1:30 बजे और आप नहीं आए ना, मैं समझा आपको पता चल गया कि बंदे ज्यादा हो रहे। क्या तेरी फ्लाइट कब है? अगली जुम्मे को। तो सर वो फ्लाइट की भी ना इंश्योरेंस करानी है। मैं जब पता नहीं पहुंचती या नहीं पहुंचती है। वो मौत भाई की बात हो। देख और एक पहली दिन बात पहले पहुंचने आपने। अच्छा देख, पहली तो मैं गाड़ी कहीं ना फ्लाइट पहुंचे। चेंज कर रहा हूँ। दूसरा तेरा कोई सामान में लेके नहीं जा रहा, चर्च पाउडर डाल दी होगी, पेशावर एंटी नार्कोटिक्स वाले बहुत मारते हैं, मेरी बद्दुआएं तेरे। बहुत मारते हैं पेशावर वाले। या अल्लाह, जब सामान के वक्त देख देख बद्दुआ कर रहा है, देख लो। अच्छा किया था मैंने, देख लो, तेरा भाई भी देखेगा ये, मैं लिंक भेजूंगा उसे। मैं 30 लाख में तुझे सेट कर रहा हूँ, ये मुझे बद्दुआएं दे रहा है। अल्लाह अकबर। हे परवर, अच्छे आदमी है सर, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है सर। हौसला मिला है कि ये पहुंच गए, हम बहुत कुछ कर लेंगे। जब ये पहुंच गए तो हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सब बातें होके बाद में होता है यार, भाई दिल पे नहीं देनी। माइंड तो नहीं किया। नहीं भाई अच्छे हैं। तो वो तो बताया नहीं जो हमने डिनर किया। खापा छापा 53 यूरो लगाए हैं इसने। 53 भाई मैं ले गया था 44 में 5 बंदों ने खा लिया, भाई ले गए 65 का बिल बना है भाई। वो भी हराम खाते हैं। ये वाली स्टोरी का भाइयों हराम खा गया, खत्म। 40 दिन को ये अच्छा गए कहाँ थे? हम भी खा चुके हैं। ये भी रेस्टोरेंट, ये भी इंडियन। ये मैं इंडियन, हम भी खा चुके हैं। हम उधर गए थे लिमासोल वाले, उधर लाल का स्टिकर लगा हुआ था। इधर भी वही कह रहा था कि जब हमने खा लिया, पहले उसने बोला है हराम है, अंदर जाके पूछे कितना हलाल है। खा लिए पूछना ही चाहिए। हाँ खा ली, ये तो उसूल है, खा लिए तो फिर क्या पूछना। वेरिफिकेशन तो पहले होती है। मैं तो जब उधर गया, हम गए, याद से मुझे, मैंने खुद, अक्सर अब्दुल होता है और कोई दोस्त यार होता है, उनको मैं नहीं यकीन करता क्योंकि हिसाब मेरा होना है। मैंने उससे पूछा भाई हलाल है, उसने स्टिकर दिखाया उस दरवाजे पे, हलाल है।
मैंने फिर एतबार किया, बस मैंने बाद में नहीं पूछा दोबारा। बहुत अच्छा किया आपने हराम खा लिया, ये अभी तक जिंदा कैसे है? इसको तुमने चीर फाड़ क्यों नहीं दिया कि हराम खिला दिया तूने मेरे? चिकन नहीं खाया था। चिकन नहीं खाया। तुम बच गए। ये सब हराम का है, हराम हो। यार तुम लोगों ने खा लिया। आराम करा तो सर अच्छे आदमी है वो जो अंदर जो बना रही थी वो खातून, उसकी आवाज आ रही थी, भरोस ने बोला बोलो हलाल है। ये देखो यार, तुम लोग पठान को वैसे कमजोर समझते हो, हाँ? हम ऐसे लोगों को जेब में रखते हैं, वो भी शलवार की। वक्त जरूरत पड़ते होते हैं। यार तो तुमने हमाम तो इस बाय फोर्स लोगों को रोकते भी हैं कि ये हराम है, मत खाओ। आपने रोका नहीं? हाँ? उसने पहले उसने आपको ही बोला था कि हम इसके साथ गए थे। तो हम इसके ये हफ्सा को भी कह रहा था, आसिफ का दोस्त तू, ये मेरे नाम पे बिल फाड़ रहा है। भाई मेरी मेहरबानी, मैं नहीं जानता इसको, मुझे माफ करो। आसिफ ही तुझे बेच रहा हाँ? था। मैं इसको नहीं जानता भाई। हाँ ये तो गैर मौजूदगी में आपको जलील करवाया। ये निकोसिया के हर कोने में आप तो दोस्त समझ के हर कुछ कर रहे ये हो। तो मुझे नहीं पता इसकी लैब में क्या हो रहा है, ये काम क्या कर रहा है। वो जिसके थ्रू मैंने इसकी नौकरी लगवाई है तो कल मेरे गले पड़ेगा। कल को ये ना हो कि वो किसी और को कह रहा हो सर कि फिर आप- भी आइंदा ऐसे कभी मत, मैं नहीं करता ये काम। मैं वेजिटेरियन हूँ कसम से। मैं तो बाहर जाता हूँ, मैं वेजिटेरियन मेरे खाता हूँ 8 उस महीने दिन। हो गए, मैंने भी की बार का नहीं, मैंने इसी वजह से। गोश्त सिर्फ ये अभी खाया। वो मार्केट में पिज़्ज़ा नहीं खाता भाई। सही करता है। मैं नहीं खाता, मैं तो हमेशा घर में खाता हूँ। इसने बोला बटर चिकन, आसिफ भाई मैंने कहा आसिफ भाई दस से हराम करूँ ना बदरवानी के। आसिफ भाई ये आपको शराब ये बिल मेरे पे फाड़ रहा है। ये सर आपको शराब भी ऐसे ही पिलाएगा कि आसिफ भाई। नहीं, अब जो चीज हराम होती है उसको तो बंदा नहीं खाता। आसिफ भाई खाए तो तुम तो मत खाओ। सब्जी में तो क्या हलाल पता हराम आसिफ नहीं भाई ने होता पिया ना। हो और सब्जी में हलाल हराम होता नहीं है, मैं सिर्फ सब्जी का ही है। आप फिश खाया करें सर जाके। वो मुझे पसंद ही नहीं। अच्छा अच्छा। ओहो फिश में नहीं। अच्छा उससे जो बंदा था ना उससे पूछा यार, वो कहता जी भाई घर ये पूछने नहीं चाहिए था, खा लिया पूछ रहे मैं वो खा लिया ना, थोड़ा सा रह गया था, एक बोटी इसकी प्लेट में पड़ी हुई। मैंने एक ही डाली थी, मैंने सिर्फ वही डाली थी, वो भी नहीं खाई। टच भी नहीं की अच्छा मैंने वो उसको। कहता है जी क्या हलाल है? कहता है हलाल तो नहीं है। मैं कहा ओ शिट। कहता मैं कहा यार थोड़े ऐसी लिमासोल से गए सी हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ये हलाल है। कहना रुक जो मैं पता करके आना। वो अंदर गया, पता किया, उसने कहा हलाल है। वो बाहर आया कहता जी हलाल है। अच्छा ठीक है चलो ठीक है ये हलाल होना। मैं उसने कह दिया उस वक्त आपने तो कर लिया। अलग ये खाया सब कुछ पहले करना था। यार अरबिक में खाओ, हमेशा अरबिक में मसला नहीं होता। इंडिया में तो बड़ा मसला होता है। यार मैं तो खाता ही नहीं इंडिया हूँ का उधर से, भरोसा बाहर से तो मैं खाता ही नहीं हूँ। इस वाली बात मैं घर में बनाता हूँ, जो भी होता है या तो हलूमी शलूमी ऐसी चीजें जो वेजिटेरियन। में स्ट्रेट होते हैं। अरब नहीं। इवन अगर देखो, अगर बात है आप इंडियन बड़े हराम करते हैं। नहीं, द थिंग इज आपने पूछ लिया, उसने कहा कि चाहे वो के हलाल है हराम है, अगर उसके हलाल है तो आप अब क्या कर सकते यार हैं? अब डिपेंड करता है ना। अब उसकी मैं गया था बुदापेस्ट, अच्छा रमजान के दिन थे, असद भी साथ था। अच्छा उसको मैंने वियना से बुलाया, रमजान था, रोज़ा था, तो हलाल खाना है और इफ्तार करना था। कोई जगह ना मिले तो चिप्स विप्स तो उठा लिए थे वो लेज वेज वाले, लेकिन मैंने कहा यार कोई खाना पूरा दिन जलील बिल्कुल हुआ। यार। एक टर्की दूसरी टर्किश रेस्टोरेंट गए शौरमा हलाल हलाल, वेयर सर्टिफिकेट, नो सर्टिफिकेट, ओके निकल। मैंने कहा मैंने तो नहीं खाना, जब सर्टिफिकेट लगाओगे, साइप्रस थोड़ी है ये तो शेंजन जोन है, इधर तो लगा होना चाहिए कि हलाल है। 10-12 शॉप्स देखी, वो कह रहा है यार लाल है उसका। अच्छा वो हरामी वो देख भी रहा होगा, डायबिटीज है ना, लीवर का, वो रोजे रखता भी नहीं है। हंसी जा रहा है, कहता है कोई मसला नहीं, आगे चले जाएंगे, वो मेरी मारी जाए। मैंने कहा यार अब ऐसे मकाम पे मैं आ गया, मैंने कहा यार अब भूख से पागल हो गए हैं, पूरा दिन भी जलील हुए हैं, अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है, चिप्स और पानी खाया है बस सुबह में, फिर सुबह रोजा फिर रखना है, तो खाना तो अच्छा। घूम रहे हैं हर गूगल मैप्स पे, आखिर में एक अफगानी रेस्टोरेंट मिला, उस पर लिखा हुआ था हलाल। तो अंधेरा था, इशा का टाइम था, उसको जब पता चला अफ्तार रोज़ा मुसलमान, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, उसने वो डक बनाई हुई थी, कहता ये हलाल है, सर्टिफिकेट लगा हुआ था, पैसे भी नहीं लिए।
मैंने इतना उसको इंसिस्ट किया यार ये पैसे, कहते हैं ये हमारा सवाब है, हमसे हमारा सवाब मत छीनो, रोज़ेदार हमारे उस पे आया है, वो कहता है ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सुबह सहरी के लिए भी ले जाओ, मैं भी सब उठा के आ गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता था और हलाल मिलेगा नहीं। चाइना में हलाल, वहाँ पे बड़ा ये अच्छा सिस्टम है कि हलाल है तो उन्होंने सर्टिफिकेट सर लगाया। उधर सर असल में जब आप शेंजन वगैरह में जाते हैं ना, वो उधर जो बकरे आते हैं ना उस पर स्टैंप लगी होती है बाकायदा, वो जब लटके हुए होते हैं ना उल्टे तो उस पे स्टैंप होती है कि यार हलाल। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम, ट्रैक होता है कहाँ से आई है, हाँ कहाँ कौन सा पे बकरा जो किस हुआ है। फ्री, हाँ कौन सी फीड इसने खाई है, अच्छा, वो सारी वो ट्री उन्होंने बताई किधर किधर से वो किस फार्म से आया है, अच्छा। वो मुसलमान है नहीं है। एनिमल ट्रैकिंग भी वो रखते तो सर प्लीज थैंक यू, कोई भी इसको मैं कहता हूँ अभी भी ये जिंदा है तो करिश्मा है, करिश्मा है। ये इसने आपकी आपको हराम मेहरबानी- खिलाया है। आपकी मेहरबानी है कि ये जिंदा है। हाँ, वाकई है, तो उसी जो हरकत इसने की है वो जिंदा रहने वाली है। उसी गोश्त की वजह से उतनी पावर मैंने तो पालक पनीर ऑर्डर किया था, हाँ पालक पनीर चिकन खाया फिर किसने? खाया है अच्छा ऑर्डर मैंने वो किया था। तो अहसन भाई आपने भी नहीं समझाया इनको, मैं तो गया ही नहीं हूँ, आप तो गए ही मैं नहीं। पहले से ही ये बताना तो अहमद भाई आपने भी नहीं समझाया इनको? अहमद भाई ख्याल ही नहीं करती इन चीजों को। ओए, वो इटली से आए हैं ना, वो बड़े मुल्क से आए हैं। नहीं नहीं हलाल हराम की बात नहीं कर रहा हूँ यार, यार हलाल हराम की, अहमद भाई रह गए। मैं हलाल हराम की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे शरीफ आदमी समझते हैं, आपने कहा यही सबसे खराब है। यार ये मेरे YouTube वीडियो के चक्कर में एक खाना जंगी हो रही है। ये YouTube वीडियो एंड नहीं होगी बल्कि खुद ब खुद एंड हो जाएगा। एंड में बंदा जाके मोबाइल ये तो बंद कर, हमने ये मैटर अलग तरीके से सॉल्व तो वो ध्यान ही नहीं करते। यार अब मैंने ये बात की, ये गलत समझा रहे बात तो आप रिकॉर्ड हुई भी है, हम उधर से देखेंगे क्या बोला है। वो आपने कहा है कि वो तो हलाल हराम का देखते नहीं, हैं। आपने सवाल पूछा है कि आपने इनको नहीं समझा, मैंने कहा वो इन चीज का ख्याल नहीं तो करते, यही तो हमने कहा, वो ये हलाल हराम का ख्याल ही नहीं करते, हमने भी यही कहा। वो खा भी लेते हैं। जाना ही नहीं क्या आखिरी रात इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल, वीजा कैंसिल, मेरे साथ जा रहा है जुमे वाले दिन, पेशावर जाएंगे दोनों भाई। हाय यस I have started a YouTube channel. Yes, and I'm like vlogging what I do in daily life. Oh really? Yes. And he's a director. Yes, I know. You getting any hits? These people, they are not sharing, liking, subscribing. They just come in, see the girls and enjoy, and they go. They don't even like. Only 10 subscribers. Yeah, we already blocked him on YouTube. काम ना जाया करें ना इनके साथ। सर आप कहीं भी ना जाए करें, आप बम है, एटम बम। और आपका फायदे की बात है, आप नहीं देखते किस तरफ आपकी तोप है, आप उड़ाते सर आप 2-3 कट्ठी शादियां सारी वीडियो सीधी हो जाएगी। इनकी नहीं होती तोप का, जो सामने का गोली आई है और मार देगा। मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा। नहीं सारे अच्छे हैं यार, ठीक सारे ठीक। दिमाग ना खराब करो, सब अच्छे हो। मेरा मीटर आउट हो गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कह दिया ना सब अच्छे हो। यार मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, कह दिया ना उसे कि सब अच्छे हो, बार बार मत पूछो। आप भाई से डरते हैं? आप डरते नहीं? उन्होंने भी हाथ उठा लिया, कोई रिलेशन नहीं है मेरा उसके साथ। ये मेरे सीनियर है, मैं इसको इसी की वजह से मैं कर रहा हूँ। हाँ इंटरव्यू भी इसमें हाँ, और तो मैंने भी इसका सीनियर ही हूँ, ये देख मेरे साथ क्या ये सीनियर हूँ सर मैं। आप जैसे होते हैं ताबेदार हलाल शागिर्द। और हलाली, आपका मतलब है हलाली।
तो ये ताबेदार और ये क्या हुआ फिर? सर ये समझ जाए हम खुद ही सर, ये आप दोनों का ताल्लुक है सर। यार अली भाई ये देखा आप अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी का अच्छा नहीं, ये मेरे सुपरवाइजर ने इसको मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया था। मतलब मेरी इंटरव्यू जब हुई थी इससे पूछा था कि इस बंदे को हम लाए कि ना। रियली मैं डॉक्टर साहब से शुरू हुआ हूँ यार, डॉक्टर साहब। अब तू बगैरत और क्या क्या सुनने अब आगे गांडू है। देख ले पहले तो डॉक्टर साहब के सर हर एक स्टेप सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। ये जितना भी थल्ले ऊपर आएगा हमारे थल्ले ही रहेगा। तो सर देख लें फिर अब, तभी तो हम मिलते नहीं है, तभी आप कहते हैं ना आप इसके साथ इजी रहें। ये मैं इसके साथ इजी नहीं हूँ तो ये हालात है। इजी होता है ये तो मुझे खा पी के बेच के डकार मार के निकल जाता। शुक्र करें सर आपने इसे अपने साथ ही नहीं रख लिया। ये तो मैंने भी कोई नेक काम किए होंगे। अली भाई मसला ये है कि तारीफ वो है जो किसी के पीठ पीछे की है। वो क्यों कर रहे हैं फिर? वो जब यहाँ नहीं था तब भी आपने नहीं किया। नहीं यार कल की थी ध्यान में, कल हम खाना खा रहे थे तो कह रहे थे यार आसिफ भाई ना होते तो मैं यहाँ जलील हो जाता। अभी भी जली। अब तो देख जलील दुनिया के सामने भी हो रहा है डिजिटल मीडिया पे। अच्छा पहले मैं कह रहा था कि आसिफ भाई नाम से वीडियो है, तब मैं कह रहा हूँ होते तो मैं वीडियो। ये तो भी आपने कहा था यहाँ आए हैं तो नहीं सर ये ही इज अ गुड गाय, बाकी कर लेंगे वो खेल। ये आप 1 घंटा लेके 1 सेकंड ये कह रहे हैं। ये अच्छा रिकवरी वो उसने कहा ना कहता ये डॉक्टर में आज कहाँ से रखा है। ये कब हुआ है? अभी देख जूती उतार के मारेगा, झूठ बोलेगा। ये सब बाकी मजाक बर्दाश्त कर लेंगे, ये मजाक बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं मैं मजाक मैंने इस बात को नहीं वो टिकटॉक पे देख रहा था ना, तो वो अफगानी देख रहा था, वाह पता नहीं वो क्या चवले मारे थे। इसके पास इतना टाइम कहाँ है कि ये चीजें। देख गलत बात ना किया कर तू। आप सॉरी करें। आप सॉरी करें सर, आप सर आंखें ना मारे। बाइकआउट करें सर, किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, हमारे इस्लाम और रिलीजन के खिलाफ है। आप सही ऐसी बातें ना कि चैनल तबलीग वाला स्टार्ट जाना नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।